Welcome dear viewers of the educators. In our last topic we had discussed what is indifference curve analysis and उसमें एक बात थी हमारे सामने that एक assumption था about MRS, diminishing MRS. उसका मतलब बहुत सिंपल से था कि marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया था, बहुत ऊपर से बात की थी कि व्हाट इज़ एमआरएस. आज इस लेक्चर में लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. बहुत बड़ी वीडियो नहीं है ये, बट हमको यहाँ पे समझना होगा इन डिटेल व्हाट इज़ एमआरएस. सो एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Marginal rate of substitution is the willingness of the consumer to replace one good for another good, as long as the new good is equally satisfying. So the rate at which consumer is willing to substitute one good for another, one good for another, as long as he is satisfied. तो ये तो इसकी बेसिक सी डिफिनेशन हो गई हमारे सामने. तो अब इसकी टेक्निकल एक अगर हम बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का एट एनी गिवन पॉइंट अलोंग द कर्व, और वो एक डिस्प्ले करता है कि हमारे सामने दो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स एक्स एंड वाई, और उसके बीच में हमें चूज़ करना है. सो एमआरएस बेसिकली एक तरह का स्लोप है जो कि हमें बताता है, और इसी एमआरएस की वजह से इंडिफरेंस कर्व, और ये रीज़न है, द एमआरएस इज द रीज़न बिहाइंड द कॉन्वेक्सिटी of IC. This MRS is the reason. MRS is the reason. And along with this reason, MRS is also the cause of slope. So if you just take a break from it and just look around the formula for the same. What will be the formula for MRS? MRS XY means the commodity X and Y, between the rate of substitution between X and Y is equals to dy upon dx, or you can say it will be equal to the marginal utility of commodity X upon marginal utility of the commodity Y. This is the basic formula for two things. And what is this D? D is the derivative of y with respect to x. When you're talking about this whole dy upon dx, this is known as the derivative of y with x commodity. Yeah, good y with good x. You can say anything. And what is this mu and mux and muy? This is so simple, marginal utility. तो हमारे सामने ये बात आ गई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, और उसके पीछे की जो बातें थी बेसिक सी कि वो किस चीज़ को लीड करता है, ये हमने अभी समझ लिया. अब जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी उसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ते हैं. अगर हम ये देखें कि हमारे सामने दो कमोडिटीज़ हैं, देयर आर कमोडिटी एक्स एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कमोडिटी वाई, और अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें तो हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉम्बिनेशन वी आर टेकिंग 1 यूनिट ऑफ x एंड वी आर टेकिंग 10 यूनिट्स ऑफ y. सिमिलरली वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 7 यूनिट्स ऑफ y, 3 यूनिट्स ऑफ x and here we are taking 5 units of y, and here we are taking 4 units of x and 4 units of y. हमारे सामने कॉम्बिनेशन बन के आ गए. अब इसके आगे हमने एक चीज़ और देखी थी, पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हम अगर देखें यहाँ पे दैट वी आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ x बाय 1 यूनिट एंड वी आर डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ y with 3,
then again we are decreasing the consumption of y by 2, and we are decreasing the consumption of y by 1 in order to increase 1 more units of x respectively. So why it is happening? So यहाँ पे ratio क्या बनता है that in order to get 1 unit of x you are foregoing 3 units of y. In order to obtain 1 unit of x again you are foregoing 2 units of y, and in order to increase 1 unit of x now you are only foregoing 1 unit of y. So this is the basic concept of MRS. MRS means the rate at which you are substituting one commodity with another, and here in order to substitute x commodity over y, you are increasing, in order to increase the consumption of x, you are decreasing y by 3, then y by 2 and then y by 1 unit. लगातार हमारे सामने ये चीज़ आ रही है कि MRS का कंसेप्ट हमारे सामने इस तरह से क्लियर होता है कि हम एक कमोडिटी कंजम्पशन x को बढ़ाने के लिए हम लगातार y के कंजम्पशन को कम करते चले जा रहे हैं, एंड दिस इज MRS. अब हम इसके आगे बात करेंगे कि ये MRS ऐसा क्यों है कि यहाँ पे एक यूनिट के एवज में 3 छोड़ रहे हैं, एक यूनिट के एवज में 2 छोड़ रहे हैं और एक एवज में 3. तो ये कहलाता है डिमिनिशिंग MRS. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग MRS. हियर यू आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स डिमिनिशिंग MRS. अब सवाल ये उठता है व्हाई MRS इज डिमिनिशिंग. तो इस जवाब देने से पहले हमने जिस तरह से पिछली वीडियो में एक छोटी सी बात की थी कि 2 तरह के प्राइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे. एक एब्सोल्यूट, कोई भी मेजर हो सकता है, एक एब्सोल्यूट मेजर ले सकते हैं और दूसरा मेजर लेते हैं रिलेटिव मेजर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आदमी की बात करें, देयर इज अ पर्सन हुज हाइट इज 6 फीट और फिर एक बच्चा है उसके सामने जिसकी हाइट 3 फीट है. तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यूज. अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चा, इसकी हाइट 3 फीट है और ये आदमी, इसकी हाइट 6 फीट है. दिस इज द एब्सोल्यूट हाइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अगर हम ये कहें कि इन बच्चों के जैसे 2 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े कर दिए जाएं तब वो उस आदमी के बराबर बनेंगे, दैट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं कि 3-3 फीट के 2 बच्चे अगर मिलेंगे तो 6 फीट बन जाएगा. तो यहाँ पे एक आदमी में 2 बच्चे समा गए. सो दिस इज द रिलेटिवनेस. हमने किसी के रिलेशन में एक चीज़ को डिफाइन किया. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि हमारे पास एक कार है जिसकी कीमत 1 लाख रुपीज़ की है. जस्ट एक एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए की कार, it is something like a joke, but you can assume. And I have a bike whose values around, you can say 10,000. ये भी एक बहुत अच्छा सा जोक है, ऐसा होता नहीं है, बट हम ये assumption लेते हैं. तो ये हमने उसकी बात की, एक एब्सोल्यूट प्राइस की बात की कि कार की कीमत 1 लाख है, बाइक की कीमत 10 लाख है. बट अगर हम एक रिलेशन लें कि एक कार की कीमत में हमारे पास 10 बाइक्स आ जाएंगी, एक कार बराबर है 10 बाइक्स की, तो ये कहलाएगा रिलेटिव प्राइस. तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, फिर से इस शेड्यूल में अगर हम देखें, हम इसको शेड्यूल कहना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आई डोंट यूज़ द वर्ड शेड्यूल. बचपन से शेड्यूल पढ़ा है तो मुझे शेड्यूल कहना ज़्यादा पसंद है. इफ़ यू माइंड, उसको शेड्यूल आप समझ सकते हैं. तो अगर हम इसमें देखें कि हम एक कमोडिटी एक्स को बढ़ाने के लिए पहले तो 3 चीज़ें देने को तैयार थे. मीन्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स वॉज 3 यूनिट्स. देन अगेन हमारे सामने एक और यूनिट की प्राइस अब 3 नहीं है, 3 वाई नहीं है, बल्कि 2 वाई है. मीन्स in order to increase 1 more of commodity X, we are foregoing 2 units only. Earlier, we used to pay 3 units. We used to forego 3 units in order to get 1 unit additional unit of this commodity. But in the second instance, we are ready to forego 2 units in order to avail this particular unit. But after this, we are ready to forego 1 unit in order to increase the consumption by 1 unit. ऐसा क्यों होता है? अब ये इसके जवाब में हम आते हैं. अगर आप देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, इसके बारे में लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं. आप वहाँ पे हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं. इन शॉर्ट हम अगर कहें तो जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं
जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी लगातार कम होती चली जाती है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि एज द कंजम्पशन राइजेज यूटिलिटी फॉल्स। ये बहुत सिंपल सा लॉ है। जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे प्यास मिटती जाएगी, जैसे जैसे खाना खाते जाएंगे भूख मिटती जाएगी, जैसे जैसे कपड़ा पहनते जाएंगे उससे उसकी जो खुशी थी वो लगातार कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी गाड़ी की जो चाहत थी वो लगातार कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप किसी घर रोज़ रोज़ मेहमान जाते जाएंगे आपकी खातिरदारी कम होती चली जाएगी। तो कभी कभी जब कहीं जाएंगे तो लोग अक्सर आपसे पूछेंगे और कहाँ थे, खैरियत से हो, नाश्ता भी कर लो। लेकिन रोज़ रोज़ जाएंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाती है। यही एक लॉ है बहुत सिंपल सा कि जब हमने एक कमोडिटी एक्स की ली थी, फॉर एग्जांपल ये फूड है, अगर हम इसको फूड के सेंस में समझें तो जब हमने एक रोटी खाई तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हमारे पास 10 कपड़े थे, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, हमने कहा एक रोटी और दे दो। एक रोटी के बदले हम तुम्हें 3 कपड़े अपने पास से देने को तैयार हैं, लेकिन एक रोटी दे दो, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। फिर जब हमारी भूख कुछ कम हुई तो हमने कहा, क्योंकि भूख कम हुई है, मैंने ये नहीं कहा कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए, हंगर मेरी खत्म हो गई है, तो हमने कहा यार अभी भूख लग रही है, प्लीज़ एक रोटी और दे दो। तो उसने कहा लो 3 कपड़े और, सामने वाले ने। हम क्योंकि भूख मिट चुकी थी, हमें पता था हमारी जान बच गई है, तो हम कहेंगे यार हम को रोटी तो चाहिए लेकिन हम 3 कपड़े नहीं 2 कपड़े दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि रोटी की अहमियत हमारी नज़र में धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अब हम एक रोटी और पाने के लिए सिर्फ 2 ही कपड़े देंगे। देखिए 3 कपड़े अब हम नहीं देंगे। फिर अब और भूख मिट गई और थोड़ा सा सेटिस्फाई हुए, हंगर अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, खाना अभी भी खाने का दिल चाह रहा है। हमने कहा एक रोटी और दे दो प्लीज़। उसने कहा लो अच्छा 2 ही कपड़े, तुमने इससे पहले 2 कपड़े दिए थे, लो 2 कपड़े अपने और दे दो। हमने नहीं, अब हम 2 नहीं देंगे कपड़े, मैं सिर्फ एक कपड़ा ही दे पाएंगे क्योंकि मेरी भूख अब काफ़ी मिट गई। उसने कहा अगर वो राज़ी हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो राज़ी नहीं होता एक कपड़ा लेने से, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमें ना दो खाना, ना दो एक रोटी। तो यहाँ पे चीज़ देखी जैसे जैसे हमने एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया, इसको हम इस तरह से अगर लिखें यहाँ पे मैं इसलिए लिख दूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें कि मैं रीज़न करके लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड रीज़न ऑफ डिमिनिशिंग MRS। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा है, एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स increases, utility falls. Therefore, we are ready to pay prices lower than they were earlier. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी गिरेगी, इसीलिए हम उसके लिए कम पैसे देने को तैयार हैं। और अगर आप उसका कंजम्पशन का इक्विलिब्रियम देखें तो वहाँ पे भी था कि MU will be equal to P. This will be the point of equilibrium for the consumer where marginal utility will be equal to the price that will be paid by the consumer. And here in this case also, जब कंजम्पशन बढ़ेगा ऑफ एक्स कमोडिटी उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो उसके लिए हम पैसे भी प्राइस भी कम देंगे। एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव प्राइसेस, क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस की बात कर रहे हैं इसीलिए हम दूसरी कमोडिटी को कम सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे पहले के मुकाबले। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। सो यहाँ तक हमने आज इस बारे में समझ लिया कि MRS क्या होता है, MRS किस चीज़ को लीड करता है, इंडिफरेंस कर्व को किस तरह से रिलेट करता है, और हमने उसके फॉर्मूले पे भी गौर किया। फिर हमने ये देखा कि MRS डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि डिक्रीजिंग होता है तो वो डिक्रीजिंग MRS क्यों होता है। इस पूरे कंसेप्ट को हमने यहाँ तक समझाया। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस लेक्चर को समझने में, सो यू आर फ्री टू आस्क अस, और हमारे नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप का टेलीग्राम का चैनल भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। Thank you for watching. Thank you now. Stay safe.